Hello. Yeah, good morning, everyone. We have our patron, Professor Muhammad Mia Sahab, with us this present morning. And of course, he is a source of inspiration for me. He was my teacher, my mentor, and of course, he is the patron of New India Education Trust. He is one of the greatest educationists in our country. Former Vice Chancellor Maulana Azad, National Urdu University, Hyderabad. He was Dean Faculty of Education, Jamia Millia Islamia, Head Department of Educational Studies, Finance Officer of Jamia, Registrar, Director Academy of Profession in Jamia Millia Islamia, and Honorary Director, Center for Distance and Open Learning, Jamia Millia Islamia. We are fortunate to have him with us, and we are also fortunate to have him as patron of this trust, New India Education Trust. Sir, welcome to this today's session. And I'm sure you will be able to guide these young teachers. As you can see in front of you, these are very young, talented teachers here. They have recently joined, and nowadays their training sessions are going on. With them, we also have teachers from Rahimia Model School, which is our sister concern in the village, which we have been running for the last, almost 14 years. So they're also here with them. So we would like you, because they have been inducted into the system recently on 1st of March. So naturally, the grooming part, especially the expectations of the organization, the mission of the organization, that these teachers, they have to understand what is our mission. I'm sure once they understand, they will be able to deliver. And we are lucky that these young teachers have come from far-off places. 5 of them are staying in the school compound. They have come from Delhi, they have come from Loni, from Muzaffarnagar, and from Barod. Today, 2 teachers are on leave. One, she is writing her examination, and another, she is representing Haryana in Ranji Trophy, so she has joined a camp. She is the sports teacher. Now, rest, all the teachers are here with us, and I would like you to, guide them and to shower them with your blessings so that they can deliver good, the purpose, the objective that we want to achieve in the village. I'm sure with this young and vibrant team, we will be able to do that. Over to you, sir. Thank you, Anisa. And it's a really pleasure to hopefully interact with the teachers of the school. And this has been, अब इनके ये जो नजर आ रहे हैं टीचर्स, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Raise your hands if you can hear. Can you hear? Teachers, ये जो सामने बैठे हैं टीचर्स, इनको सुनाई दे रहा है? नको? Yeah. भाई शक्ल से तो नजर आ नहीं रहा है कि सुनाई दे रहा है। No, they raise their hands. लग रहे हैं सब लोग कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कान में बात जा ही नहीं रही है। आप लोग अपने अपने घरों से आए हैं, 3 लोग यहाँ, 3-4 लोग यहाँ रह रहे हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है अभी नहीं? बोलो हाँ। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, तो आप कैसे बात करेंगे? हम लोग तो बगैर इंटरैक्शन के मजा ही नहीं आता हमको। एक तरफा बात करने से तो बात ही नहीं बनती। खैर, आप लोग टीचर हैं, हम भी टीचर्स थे। हमने टीचर्स को तैयार किया, बीएड पढ़ाया, बीएड के बाद एमएड पढ़ाया। लेकिन जब हम स्कूल में थे और हम याद करें कि हमारा स्कूल कैसा था, हमारे स्कूल टीचर्स कैसे थे, तो हमको एक अच्छा टीचर बनने में आसानी होती है। भले ही हमने बीएड में
सोशियोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन पढ़ा, पेडागोजी पढ़ी, इंग्लिश की हो, मैथमेटिक्स की हो, सोशल साइंस की हो, सब कुछ पढ़ा हमने। वो मेरे ख्याल से इम्तिहान पास करने के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। लेसन प्लान भी तैयार किए हमने, ये थे ना, या वैसे ही मिल गया था? सर उधर से आवाज कम आती है क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस में बैठे हैं। अरे दानी साहब, आवाज नहीं आती है, शक्ल तो देख रहे हैं हम उनकी। हाँ ये बात सही है सर, बिल्कुल शक्ल से पता शक्ल चलना देख के चाहिए। तो अंदाजा होता है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ अभी कुछ लगा सर, अभी कुछ लगा है सर, कुछ असर हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो होना चाहिए ना। जब आवाज नहीं जा रही है तो इशारे तो हो सकते हैं, गर्दन हिल सकती है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, हैं? बिल्कुल। हाँ, और बच्चों को डांटना हो तो कैसे हो सकता है? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और और अगर किसी बच्चे की कोई बात अच्छी लगती है तो अच्छी सी बात, तो इशारे भी बहुत जरूरी है। सिंबॉलिक लाइफ की जो हमारे लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा हुआ कि आपने ये मौका मुझे दे दिया कि सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कितनी जरूरी होती है, कि अगर आप किसी बच्चे की कोई एक्टिविटी नापसंद है तो आप बगैर कहे हुए, बगैर दूसरे बच्चों को बताए हुए आप उसको इशारतन कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो इशारतन भी कहिए, और ऐसा भी कहिए कि लोगों को मालूम हो कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तभी तो उसको अच्छा लगेगा। हैं? अब मैं ये कहूं कि पीछे एक मौलवी साहब बैठे हैं जिनकी दाढ़ी है, उनकी शक्ल मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े सीरियस लग रहे हैं वो, पता नहीं क्यों है। उन्होंने अभी क्या क्या किया है, घर में नाश्ता किया है नहीं किया है? हाँ, अब लगा कि हाँ कुछ सुन रहे हैं और दिलचस्पी भी ले रहे हैं। आ रही है बात समझ में आपको, नहीं आ रही है? आ रही है ना? हम आपको ये मान के चल रहे हैं कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, हाँ, और हमने देखिए इशारा कर दिया क्योंकि वो उनके दाढ़ी है, टोपी लगाए हुए है, तो हमने कहा कि वो मौलवी साहब बैठे हुए हैं। अब पता नहीं फजर की नमाज के बाद उन्होंने कितना क्या किया है, कुरान शरीफ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये तो ये जाने, लेकिन अगर पढ़ा है तो लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। अच्छा, तो ये सब चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा सा तकल्लुफ हो रहा था कि जब इन्होंने, अनीस साहब ने कहा, तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत जमाने से मैंने क्लास नहीं लिया, तकरीबन मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए, एज टीचर रिटायर हुए। एडमिनिस्ट्रेशन करता रहा हूं, लेकिन 2012 में मैं रिटायर हो गया। मैं एमएड के क्लास पढ़ा रहा था, तो एमएड के क्लास पढ़ाने में और 9-10 के क्लास पढ़ाने में जरा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा मौका मिलता रहा, क्योंकि हम टीचिंग प्रैक्टिस में जब जाते रहे, टीचिंग प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमको मौका मिलता रहा कि आजकल क्लासरूम में क्या हो रहा है। टीचर एजुकेटर तो वही हो सकता है अच्छा कि जिसको मालूम हो कि आज के हालात में क्लासरूम कैसे चल रहे हैं, तभी तो वो अपने स्टूडेंट्स को बताएगा कि हाउ टू हैंडल इट। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं आपको। आजकल लोग मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं बाद में, हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू वगैरह में बुलाया जाता हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं, तो अब पहले लोग मालूम करते हैं कौन कौन आ रहा है इंटरव्यू में। मोहम्मद मियाँ भी आ रहे हैं। मोहम्मद मियाँ का क्या सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स है। अरे तो ठीक है, मैथमेटिक्स है तो ठीक है, क्योंकि मैं तो हिंदी का हूं, मैं तो इंग्लिश का हूं, मुझसे तो सवाल ही नहीं पूछ सकते। अरे भाई, हम तो सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप तो हमें मौका देंगे सवाल पूछने का, हम आपसे ही सवाल पूछते हैं। अब मैं खामोश हो गया तो आपको परेशानी हुई कि ये खामोश क्यों हो गया? इसे मैं खामोश इसलिए हो गया कि आपकी अटेंशन चाहता हूं। इसे कहते हैं पॉज। समझन पड़ी?
नहीं पढ़ी, समझन पढ़ी गुजराती है। मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मैंने समझन पढ़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूं समझ में आया, समझन पढ़ी? मैं आपसे पूछ रहा हूं समझन पढ़ी? नहीं, yes. नहीं, पॉज का मतलब नहीं मालूम? अच्छा खैर, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए इस चीज को। क्या बात है कि ये जो कैमरा है कुछ लोगों को ही दिखाई दे रहा है, बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे। खैर, मैं क्या कह रहा हूं कि जो वो सर पॉज एक है, ही लैपटॉप से सबको ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि सब लोग सबने अलग अलग उससे ज्वाइन नहीं किया, तो वो फोकस एक ही जगह करेगा सर। अच्छा 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 अच्छा, तो थोड़ा सा छोटा कर देते। खैर, मैं कह रहा हूं कि पॉज जो है, वैसे तो यहाँ आप पता नहीं उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, आपको कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन पॉज का मतलब ये होता है कि आप अगर क्लास में 45 मिनट का क्लास ले रहे हैं या 35 मिनट का क्लास ले रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चा 35 मिनट अटेंशन रहेगी आपकी तरफ, सुनता रहेगा मुस्तकिल? हाँ या ना? जवाब होगा ना। क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन होता है, तो हमको बीच बीच में थोड़ा सा पॉज देना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, चाहे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस में हम अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हमको थोड़ी देर में बीच में कोई इस तरह की बात करनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट से हटके हो लेकिन इररेलीवेंट ना हो, तो हमको अच्छा लगता है और उसको हम पॉज कहते हैं, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो, क्योंकि आप अटेंशन बहुत देर तक नहीं रख सकते। ये आपने पता नहीं मेथोडोलॉजी में पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने एमएससी किया होगा, एमए किया होगा, बीएससी किया होगा, आप सब्जेक्ट से सीख कर आते हैं। हम बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाएंगे और लैंग्वेज को कैसे पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाएंगे, और बच्चों की उम्र को ख्याल में रखते हुए हम कितना उनको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, कितनी देर तक। तो मेरी समझ में, अगर आपकी समझ में पॉज नहीं आया तो फिर हम दूसरा पॉज भी देंगे आपको, आप समझ लीजिए। मैं आज भी अपने कुछ टीचर्स को याद रखता हूं। किन टीचर्स को याद रखता हूं? अब जैसे हिंदी के टीचर हैं मेरे, स्कूल में पढ़ाया था उन्होंने मुझको, छठे सातवें आठवें में। उनका नाम, पूरा नाम तो याद नहीं है, वो रस्तोगी साहब कहलाते थे। दूसरे टीचर हमारे 9th और 10th में अमीर साहब थे। बेचारे अमीर साहब देखने में लगता था कि वो शेरवानी पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी है, और वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते होंगे। ऐसे ही हमारे साइंस के टीचर थे अमरीक सिंह साहब, स्कूल की बात कर रहा हूं। मैं अगर प्राइमरी स्कूल की बात करूं तो मुझे आज भी बाबूराम भी याद हैं, मुझे आज हमीद साहब भी याद हैं, हमें आज बूढ़े बूढ़े मास्टर साहब भी याद है। बूढ़े मास्टर साहब क्यों कहते थे उनको? अच्छी बात नहीं है बूढ़े मास्टर साहब कहना, क्योंकि आपको ध्यान नहीं, हमारी जो उम्र है, हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम किस सिस्टम से निकल कर आए हैं और आप लोग किस सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, कितने आगे जा चुके हैं हमारे यहाँ। हमारी सिस्टम कितना आगे जा चुका है, उसको हमें कैसे मेंटेन करना है और उसको आगे बढ़ाने में हमें कैसे मदद करनी है। तो मैं ये बता रहा था कि बूढ़े माँ साहब का नाम आज तक नहीं पता चला हमको क्या है, लेकिन बूढ़े माँ साहब क्या करते थे। आज क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, पेरेंट्स या बच्चों को बस तक या व्हीकल तक छोड़ने आते हैं, तब बच्चे स्कूल आते हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको भी ये बात मालूम होगी कि ये बूढ़े माँ साहब इसलिए कहलाते थे कि ये बच्चों को मोहल्ले से, घर घर से इकट्ठा करके स्कूल लेकर आते थे। छोटे बच्चों को खास तौर से फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को लेकर आते थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये इंतजाम था कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड होनी चाहिए कि जो बच्चों को घर से ले आए, क्योंकि माँ बाप तो पहुंचा नहीं सकते उस जमाने में, तो ये वो नहीं था।
तो अब मेरी अम्मी तो नहीं पहुंचाती मुझे स्कूल, और अब्बू तो हमारे वैसे भी नहीं पहुंचाते, तो अम्मी तो बेचारी कैसे पहुंचाती। तो हम तो स्कूल जब पहली और दूसरी क्लास में थे तो ये था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस जमाने में जब मैं स्कूल में था जो भी हुआ आज भी मुझे याद है। और क्यों मुझे याद है, मुझे उन टीचर्स की वजह से याद है, या तो उनके बिहेवियर में जनरल बिहेवियर की वजह से, या फिर उनके एकेडमिक मेथोडोलॉजी की वजह से, कि उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया उस तरह से हमको समझ में आया। अब मैं किसी इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूं, अनीस साहब भी इंटरव्यू देने आए। अनीस साहब कहेंगे साहब मैं हिंदी पढ़ाना चाहता हूं, तो सोचेंगे यार ये तो सवाल नहीं पूछ सकता। तो और अगर मैंने सवाल पूछ लिया कि अच्छा अनीस साहब ये बताइए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, ता खाए बोराए ता पाए बोराए। समझ में आया तुम्हारी? यस और नहीं? यस। अब मैं ता खा बोरा है ता पाए बोरा है, ये दोहा मैंने इसलिए पढ़ा कि मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार पढ़ाते हैं हिंदी में? यस और नो? हिंदी वाले बताएं, अलंकार पढ़ाते हैं? कौन सा अलंकार है? मुश्किल हो जाएगा। अब मैं अगर ऐसा सवाल पूछता हूं हिंदी के टीचर से, तो हिंदी का टीचर बहुत परेशान होता है और जवाब दे सकता है यस यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। जब वो ये कहता है यमक अलंकार है, तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम अनुप्रास अलंकार की एक वो उदाहरण दो। तो मैं एक हिंदी के टीचर का भी इंटरव्यू कर सकता हूं अगर मुझे बैठने का मौका मिलता है और मेरे टीचर्स ने मेरे दिमाग में कुछ डाल दिया है। तो मैं हिंदी टीचर की बात आज इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे हिंदी और अलंकार इतने अच्छी तरीके से पढ़ाए थे कि आज भी मैं याद करता हूं। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैंने हाई स्कूल कब किया, बताऊं? 1964 में हाई स्कूल किया था, और आज भी मुझे हिंदी और अलंकार याद हैं। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि संस्कृत, अब पता नहीं यूपी में तीसरा पेपर संस्कृत का होता है या नहीं होता है। हिंदी में 3 पेपर होते थे, गद्य पद्य और संस्कृत 3। हमने संस्कृत भी पढ़ी है, और संस्कृत जब पढ़ी थी हमने तो उसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आप चाहे उनको टेंसेस कह लीजिए, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, तो उसको कैसे करेंगे। तो एक सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने, ती ता अंति, सी था, अश्वधावती, अश्वधावती। अश्व का मतलब मालूम है? घोड़ा। धावती का मतलब है दौड़ता है। अश्वधावती, घोड़ा दौड़ता है। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में हम बराबर कर सकते हैं, संस्कृत में बराबर कर सकते हैं। तो मैं ये अपने टीचर्स का मुझे याद, जब भी मौका मिलता है मेरा दिल खुश होता है कि मैं अपने टीचर्स को याद करने में मुझे मौका मिलता है, और ये अच्छी बात है। सेकेंड थिंग मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, सोच लगानी पड़ती है, बच्चों के कैरेक्टर को देखना पड़ता है, बच्चों की एबिलिटीज को देखना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अल्लाह मियां ने उनको अलग अलग तरह से बनाया हुआ है, उनमें अलग अलग काबिलियतें हैं, और उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि हर बच्चा एक ही काबिलियत का नहीं होता। उनकी काबिलियत को हम अगर आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और हमें अंदाजा है, अगर हमने साइकोलॉजी, देखो बीएड वालों को लोग कहते हैं कि बीएड यूजलेस होता है, कोई फायदा नहीं होता पढ़ाने से, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ें आप, बीएड में अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पढ़ाया गया होगा, पर्सनालिटी भी पढ़ाई गई होगी। इसलिए पढ़ाई गई थी
कि आप बच्चों की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सके। बहुत से बच्चे बहुत उदास रहते हैं, बहुत से बच्चे हर वक्त बहुत खुश रहते हैं, और अगर कोई बच्चा जो खुश रहता है अगर आज क्लास में उदास है तो आप क्या उसके वजह नहीं जानना चाहेंगे कि क्या वजह है उदास है? हो सकता है उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो सकता है कि उसने कोई गलती की हो, पिट के आया हो घर से। तो इसमें भी टीचर का कोई रोल है या हमें सिर्फ पढ़ाना ही है? हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जब बीएड में हम साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? हम इसलिए कि उनकी पर्सनालिटी, उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और दूसरी बात यह है कि किस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सब सिखाने के लिए हम टीचर्स को ये सब चीजें पढ़ाते हैं, जिसका कोई भी असर शायद नहीं होता है। मैं इसलिए बार बार इसको कहता हूं, इम्तिहान पास कर लिया तो पास कर लिया, अरे पास कर लिया, अरे भाई क्यों पढ़ा रहे हैं? कुछ वजह होगी। यस, वजह है। इसलिए उस वजह को अगर दें तो अगर हम बच्चों को देखें कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, हमको उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आप मैं छोटी सी बात कहता हूं, अगर कोई बच्चा उदास है, आप उससे क्लास में नहीं पूछना चाहते कि वो दूसरों को ना बताएगा, तो आप बाद में क्लास के बाद में उससे पूछिए, बेटी क्या बात है? वो कहेगा मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तबीयत में तो कुछ नहीं ठीक कर सकते आप, लेकिन उसका इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इमोशनल उसको बैलेंस करने के लिए आपका एक शब्द भी, दो अल्फाज भी आपके बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो इसलिए टीचर्स को सिर्फ क्लास में पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों को देखना है, उनके डेवलपमेंट को भी देखना है, उनके हालात को भी देखना है। ये बहुत बहुत जरूरी होता है। मैं प्राइमरी स्कूल की जब बात कर रहा था, आप लोग तो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड है मेरी, मैं इंग्लिश की बात भी करता हूं, मैं हिंदी की बात भी करता हूं, मैं उर्दू की बात भी करता हूं। आज गालिब की अगर कोई गजल मुझे याद है तो कितना अच्छा लगता है कि मैं उसको भी सुना देता हूं कभी कभी, है। और अगर मैं गालिब के चंद अशार क्लास में कह देता हूं, बहुत से टीचर्स की हिम्मत ही नहीं होगी, लोग कहेंगे ये क्लास पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स का या गालिब के शेर सुना रहा है? तुम बताओ, क्यों क्यों सुना रहा है गालिब के शेर? बदतमीज कहीं का, ऐसे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो मैं अभी शुरू में मैंने बात की थी, पॉज की बात की थी आपसे, एहतियातन पॉज की बात की थी, तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपने बहुत ही प्रूफ कर दिया है और बच्चे थोड़ा सा थक गए हैं, तो आपको अच्छा उनको थोड़ा सा पॉज देना चाहिए। स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं इसको, है स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। आपका स्टिमुलस वेरी करता है, पॉज कैसे देंगे? आप पॉज उनको देंगे, आप एक शेर सुना दीजिए मैथमेटिक्स की क्लास में, बच्चे हंसेंगे, मजा आएगा उनको, और फिर बैक टू मैथमेटिक्स। आपने देखा बैक टू मैथमेटिक्स, तो आप देखेंगे अगर आपने पॉज करके रीस्टार्ट किया है मैथमेटिक्स, तो बच्चों की अटेंशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एक शेर सुनाऊं आपको, मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है ये। सर सारी उम्र मैं ये भूल करता रहा, सारी उम्र ये भूल करता रहा, धूल मुंह पर थी आईना साफ करता रहा। बहुत खूब। समझ में आया? हाँ, ये अपनी गलती का भी एहसास करना चाहिए, दूसरों को हमेशा दूसरों पर नहीं डाल देना चाहिए, अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और फिर इंट्रोस्पेक्ट करके, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो अपनी अपनी गलतियों को सुधार कर सकते, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी गलतियों को खुद सुधार सकते हैं और हम अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ये तो चंद बातें थी। मैं इसमें एक चीज को और कहना चाहूंगा कि अगर स्कूल लेवल पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, जबकि दूसरे सब्जेक्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन मैथमेटिक्स और लैंग्वेज बहुत बेसिक्स है। मैथमेटिक्स लॉजिकल एक बात बताता है, सब जिंदगी भर काम आती है। लैंग्वेजेस भी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मदद करते हैं। अगर इन पर अच्छी तरह से जोर दिया जाए तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, हिंदी आती है ना आपको, यूपी के हैं, बिल्कुल आती होगी। हाँ, हम एक चीज प्रयोग करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर हमको लगता है कि बच्चे किसी जगह पर कमजोर हैं तो हम लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स में डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, ताकि उस टेस्ट से उनकी कमियों का अंदाजा हो और हम एक रेमेडियल टीचिंग भी दे सकते हैं, और देनी चाहिए। और खास तौर से जिस बच्चे को हो, हम रेमेडियल टीचिंग जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली हो, हम क्लास में भी उसको इत्तेफाक से सपोर्ट कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग का भी करना चाहिए। ओके, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, मैं तो दूसरी तरह से सोच के बैठा हुआ था कि बच्चों को टीचर्स को किस तरह से बात करेंगे, और अगर मुझे मौका मिलता, जो शायद बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ट्रैवल करना आउटसाइड, तो फेस टू फेस टीचर से भी बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको भी कभी कभी देखना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद और दूसरी चीज करने के बाद अपना भी डायग्नोसिस करते रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे लोग डायग्नोसिस करें, आप सेल्फ डायग्नोसिस करें, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि आपको क्या नहीं आता है जो आना चाहिए था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कमियां निकाल रहा हूं, हम कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमी रह जाती है। और अगर हम ऑब्जेक्टिवली इस चीज को असेस करते हैं कि हमारी क्या कमी है, तो उसको दूर करने में हमें आसानी होती है, और उसका जो फायदा है वह आपके स्टूडेंट्स को होता है, चाहे वो एकेडमिक कमी हो या फिर अपना बिहेवियरल कमी हो। दोनों में अगर हम देखते हैं, अपना भी डायग्नोसिस करें तो और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, रेमेडियल देने की कोशिश करें, तो वो भी क्लासरूम में बहुत अच्छी बात होती है। क्लास के बाहर मैं छोटी सी बात करूंगा, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, कि हमें जब बच्चों की पर्सनालिटी की हम बात करते हैं तो हम क्लासरूम की ही बात करते हैं जनरली, लेकिन हमारी अगर बीएड जिन लोगों ने भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, उन्होंने एक परिभाषा जरूर पढ़ी होगी, एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। माइंड मेंटल, बॉडी फिजिकल, स्पिरिट सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो एजुकेशन सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, एजुकेशन इज एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स। और ये परिभाषा किसकी है? ये महात्मा गांधी ने परिभाषा दी थी एजुकेशन की। और अगर हमने इसको देखे, चाहे जिन्होंने बीएड किया हो, डिप्लोमा किया हो, आपने टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ी होगी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ी होगी। यस, क्या है 3 उसका? कॉग्निटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर, माइंड, बॉडी, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है, जो ब्लूम्स ने दी है, महात्मा गांधी ने उसको अपनी परिभाषा में कह दिया है। ब्लूम्स ने टैक्सोनॉमी दी है। जब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं अपने लेसन प्लान में, तो इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमको सिर्फ इन 2 चीजों का और भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट का भी मौका देना चाहिए। हम अपने यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स भी करते हैं,
फिजिकल प्रोग्राम्स भी होते हैं, फिजिकल एजुकेशन का भी होता है, भाग दौड़ भी होती है, गेम्स भी होते हैं, उस पर भी मौका देना चाहिए और वक्त भी देना चाहिए। मुझे 30 मिनट दिए थे अनिल साहब ने, मैंने 30 मिनट में अपनी बात को जो कहना था वो कह दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम टीचर्स को अपने आप को भी असेस करना चाहिए, टीचर्स को स्टूडेंट्स को भी असेस करना चाहिए, अपनी कमी खुद दूर करनी चाहिए किसी को बगैर बताए हुए, और स्टूडेंट्स की कमियां भी बगैर दूसरों को बताए हुए दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं कुछ अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी शांति से मुझको सुना है और कोई सवाल नहीं पूछा बीच में, और उम्मीद है अभी भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Actually, because of only one projector we have put there, and they have joined only through one laptop. That's why it could not be interactive session. But yes, of course, आपने जो कुछ बातें बताई हैं, खासतौर से जो पॉज वाली बात थी, और फिर जो पुराने टीचर्स, हम उन्हीं टीचर्स को याद रखते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उन सभी टीचर्स को हम याद रखते हैं। मुझे यकीन है कि इन टीचर्स को भी, अपने जो पुराने टीचर जिन्होंने इन्हें प्राइमरी में पढ़ाया होगा, नर्सरी में पढ़ाया होगा, इनको वो टीचर्स जरूर याद होंगे जो इनके लिए बहुत अच्छे टीचर्स रहे होंगे, उनको हम याद रखते हैं। मुझे यकीन है कि आप जो आपने बातें बताई हैं वो ये टीचर्स याद रखेंगे, और जो हमारा मिशन है खासतौर से गांव में, रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं उनको एक बेहतर और आला तालीम, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम हो, वो तालीम देने का जो हमारा मिशन है, ये टीचर्स ही उस मिशन को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा हमारा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला, और इसी तरीके से अपनी दुआओं में हमें याद रखें और दुआएं देते रहें, इंशाल्लाह मिशन कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह, इजाजत दीजिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Yes, my dear teachers, we have another speaker today. He is waiting actually, and he will be joining very shortly. मुझे ऐसा लगता है कि आज इंटरनेट जो है वो